बिहार से जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं और धीरे धीरे अब वो नतीजों में परिवर्तित होते दिखाई देंगे। लगातार जो विशेष कवरेज है वो संसद टीवी पर जारी है। एनडीए की बढ़त अपने आप में एक ऐतिहासिक बढ़त बनी हुई है। आपको बता दें कि सूबे ने एक बार फिर से एनडीए पर विश्वास बरकरार रखा है। ऐसा जो शुरुआती ट्रेंड्स अब तक आ रहे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है। 190 सीटों पर एनडीए आगे है, जबकि 49 सीटों पर महागठबंधन आगे है। तो ये विश्वास सिर्फ बरकरार है या पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है? तमाम जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं, हम मेहमानों के जरिए उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही माना जा रहा है कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। साथ ही एनडीए गठबंधन जो है वो 2010 के अपने रिकॉर्ड को क्या तोड़ता नजर आएगा, क्योंकि बार बार यही दावे किए जा रहे थे कि प्रदर्शन बेहतर होगा, लेकिन ये प्रदर्शन क्या 2010 के आंकड़ों को छू पाएगा? तो तमाम चीजें हैं जो धीरे धीरे सामने आ रही है। मेरी सहयोगी टीना भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। टीना, क्या लग रहा है? Good afternoon, viewers. Good afternoon to all the guests who are joining us on the program today. Before we proceed with our conversation and discuss some of the structural factors that are driving this kind of trend for the NDA, let me remind the viewers that the final results are still some hours away, but the momentum since morning has only strengthened in favor of the ruling alliance. Through the next hour, we'll try and break down what these trends reveal about voter behavior, about voter pattern, about the larger economic and social undercurrents that have or that are on way to give the NDA a sweeping majority. Whether they'll be able to get past the 2010 numbers is something for which we'll have to wait until evening. But what have been some of the most concrete and decisive factors that have shaped today's numbers is what we will try and understand over the next few minutes with an expert panel of guests who are joining us. I'm pleased to welcome on the program Dr. Manoj Kumar, Associate Professor, Dayal Singh College, Delhi University. Mr. Devendra Shukla, he's a cephalogist. Joining us virtually is Ms. Aditi Tandon. She's a senior journalist. Thank you all for joining us on this very, very important day. Let's begin with you, Ms. Tandon. You've done a couple of ground reports from Bihar, traveled also extensively. What are some of the factors or issues that you picked up on the ground which you see translating into the results today clearly in favor of the NDA alliance? See, I think the most significant and dominant issue that has worked for the ruling NDA dispensation has been the combination of Prime Minister Narendra Modi at the center and Chief Minister Nitish Kumar in the state. So right at the start of the election cycle, the NDA was able to project a united front. We all know that even before the elections were announced, all their allies were on board. Their seat sharing was almost finalized, and they had announced everything well in time for the elections. Contrast that with the Mahagathbandhan, where we saw that there were problems even on the last date of withdrawal of nominations, and in the end also around 8 to 10 seats are such where all these Mahagathbandhan allies were actually fighting one another. So that was the part of unity versus disunity on both the sides. The second big factor, as I said, was there was Prime Minister Narendra Modi versus Rahul Gandhi at the national level, and there was Nitish Kumar versus Tejasvi Yadav at the state level. I don't think, given the BJP's very strong pitch and JDU's recall of Jungle Raj of RJD-led government under Lalu Prasad Yadav, the voters appear to have found it very difficult to side with the NDA dispensation, which has delivered on a number of governance promises. Add to that, the incremental vote that has come and actually swung the election hugely in favor of the NDA. NDA is almost touching the 2010 mark when it had won the 3/4 majority. Today, they've crossed the 2/3 majority already, and we are seeing them inching ahead. 206 was the number that they had clocked in the 2010 elections. And they are already past, I think, 190 so far, if your tally is telling us that. This only means Tina, that they have had a factor, the combination of all the factors right. The leadership has been in place, the governance and delivery matrix has been in place, and thirdly, you can't discount the fact that Bihar does have a deeply, deeply entrenched caste and community equation, which also the BJP with its rainbow coalition of caste and community parties has managed to appeal to the voters. On the other hand, you did not have too many alternatives that people could look forward to in the Mahagathbandhan. They were
Their campaign, as far as I saw it from a distance, was very negative. It was sort of frustrating. It bordered on defeatist attitudes. For instance, I'll just give you one example. Mr. Rahul Gandhi, the leader of opposition in the Lok Sabha, actually did his presentation about alleged voter theft in Haryana on the eve of the first phase of Bihar elections. His press conference was scheduled on the 5th of November. And in that press conference, he actually said that after Haryana, we can also come back to you with a presentation that will show a similar trend in Bihar. So even before you've entered the battlefield, you know, your cadres are out in the field, your candidates are waiting for your assurances. You are kind of presenting a defeatist attitude that, you know, the elections are rigged. So psychologically, I don't think that must have appealed to the voters, and the results exactly show that. Broadly, Tina, the politics of India is moving towards aspiration and positivity, and we are looking at party after party that is practicing negative politics of frustration is actually biting the dust at the hustings. So broadly, I think it is the psychological psychologically negative and psychologically weak outlook of the Congress party, coupled with the Jungle Raj campaign of Nitish Kumar and Prime Minister Modi and BJP against the RJD, and the woman factor that ultimately played a big role. It's not as though the last minute disbursal of 10,000 rupees worked wonders for the NDA. No, that is not the case. Anybody who knows Nitish Kumar's politics knows that Nitish Kumar is the only Bihar leader that has cultivated the women's constituency right from the day he has taken up the CM. That's right. He's had initiatives right from 2005 up to 2025, which have empowered women of Bihar in more ways than one. There are so many of his schemes and initiatives about which we could talk in due course of the program. But the caste factor about which you referred to, you highlighted a combination of factors which worked hugely for the NDAs. Similarly, on the other side, a lot of other factors which didn't work well to begin with for the Mahagathbandhan, because they didn't have their house in order even on the eve of the election. And then, of course, the seriousness with which you take elections. Just ahead of this discussion, I was discussing with the previous panel, Dr. Kumar, about how Prime Minister, he's a star campaigner, but at the same time he puts in that effort. He addressed 14 rallies in Bihar. He went there 7 times. Compare it to any other star campaigner of any other party. Despite multiple issues being there, you have the star campaigner right there talking directly to the people, and perhaps that makes a huge lot of difference in a state like Bihar, where you have so many issues at play. Ms. Tandon spoke about rainbow coalition. So where there is caste, there is also, in this case of NDA, there is development at play, and there are other welfare schemes which have been the undercurrent in the manner in which the voters have cast their vote. Okay, thank you, Tina ji. Basically, मोदी जी का जो इफ़ेक्ट है, बेसिकली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो लीडर होता है उसका एक जनता के प्रति और जो उनकी पॉलिसीज़ है वो दोनों में बिल्कुल ही समानता दिखती है। और मोदी जी का जिस तरीके से चुनाव में, इलेक्शंस में और इलेक्शन के बाद भी जिस तरीके से अपने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंटिंग करते हैं और जिस तरीके से ग्राउंड पे उस एजेंडे को लेके जाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करता है, वोट में रिफ्लेक्ट करता है। आप अगर उनके पूरे राजनीतिक कैरियर को उठा के देख लीजिए, चाहे वो गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तब और 2014 से लेकर अभी तक जितने भी स्टेट में जो चुनाव हुए हैं, उस हर चुनाव को उन्होंने बड़े ही माइन्यूटली स्टडीज़ किया है और वहाँ के जो लोकल इश्यूज़ हैं उसको ही बड़े ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया है। और जनता के साथ जो उनका कनेक्शन है, जो संपर्क है, वो कहीं ना कहीं हर चुनाव में देखने को मिलता है। वो चाहे जो जनरल इलेक्शन था 2024 का, और उसके पहले भी आप देख सकती हैं 2020 का जो विधानसभा चुनाव था, या इवन 15 का जो चुनाव हुआ था, और अभी रिसेंटली जिस तरीके से हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश के जो चुनाव हुए, उस सब में जो मोदी जी का, जिसको हम बोलते हैं करिस्मेटिक बिहेवियर, तो पूरे भारत जो 140 करोड़ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं मोदी जी के जो प्रयास हैं और उनके जो विज़न हैं उसको कनेक्ट करते हैं। और नॉट ओनली इन बिहार, अक्रॉस द इंडिया अगर आप उसको आप पॉलिसीज़ वाइज देख लीजिए, चाहे उनका जो स्लोगन है सबका साथ सबका विश्वास, और जिस तरीके से वो लेके अपने पॉलिसीज़ के माध्यम से जाते हैं। और ऑब्वियस है, भारत एक बहुत ही विविधता वाला देश है, यहाँ पे कास्ट और क्लास और रिलीजन ऑलवेज मैटर करता है, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी इन सब चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करते हुए वो सबका साथ सबका विकास
विकास और जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो बात होती है, आप उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ पिछले 11 साल का अगर केंद्र सरकार की पॉलिसीज़ उठा के देख लीजिए, हर पॉलिसीज़ में जो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कंसेप्ट है, जो अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रख के बनाया जाता है, तो मुझे लगता है कि आज की जो जनता है, पूरे भारत की जो जनता है, वो बहुत ही एस्पिरेशनल है और इसको एस्पिरेशनल बनाने में देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत ही योगदान रहा और इसीलिए आज हम चौथी अर्थव्यवस्था तक पहुंचे हैं। हर यूथ, चाहे वो महिला हो, अभी जैसे बिहार की चुनाव की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में फर्स्ट टाइम जिस तरीके से जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, और एक और मैं इसमें चुनाव आयोग को भी बधाई देने का पात्र उन लोगों ने किया है कि पहली बार ऐसा हुआ कि वहाँ कोई पुनर्मतदान नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि बहुत ही हिस्टोरिक ये जो मैंडेट जो बिहार की जनता दे रही है और इसका इम्पैक्ट पूरे भारत राज्य पे पड़ेगा। और अभी इसका जो चुनाव वेस्ट बंगाल में जो होने वाला है, क्योंकि SIR का जो जिस तरीके से जो भारत की जो अपोजिशन पार्टियों ने जिस तरीके से उसका मिसयूज़ किया, जिस तरीके से जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने मैंडेट दे दिया है और उसी का नतीजा देखिए कि आप 10% महिलाओं का भागीदारी बढ़ा है। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्लोगन है वो किसान की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं और गरीब की बात करते हैं। तो उन्होंने अपने पॉलिसीज़ के माध्यम से इन चारों जो वर्ग हैं, जो कि बिगेस्ट स्टेक होल्डर हैं भारत के राजनीतिक तंत्र में, उन सबको एड्रेस किया और उसी का रिफ्लेक्शन आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और वो हमेशा डबल इंजन की जो बात करते हैं, और आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार जी 19 साल से बिहार के एक इकलौते ऐसे भारतीय राजनीति के एक ऐसे नेता हैं जो कि 19 साल से मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और उनका कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और इसीलिए आप देख सकते हैं सीट में जिस तरीके से जो रिफ्लेक्शन अभी दिख रहा है, 86 पे बीजेपी का रुझान है और 76 पे जेडीयू का। तो मुझे लगता है कि ये अपडेट किया है 87 फॉर द बीजेपी एट 12:17 इट्स आफ्टरनून, जेडीयू एट द मोमेंट लीडिंग ऑन 75, आरजेडी एट 35, LJP Ramvilas at 20. It's important to mention this party because they contested almost half the party as the Congress. They're leading at the moment on 20. The CPI ML at about they're leading on 7 seats. The Congress is down to 6. And the HAM is currently leading on 4 seats. So this is the trend for 243 seats as per the Election Commission. It's midday, few more hours before we know about the final result. But before we proceed with the conversation, let's listen in to what BJP leader Nityanand Rai has to say. सबसे पहले तो उनका हृदय से अभिनंदन बिहार के सभी मतदाता भाइयों बहनों का। और बिहार के लोगों ने बता दिया कि बिहार को अब विकास चाहिए, अपने बच्चों को और अपना भविष्य चाहिए। भरोसा बिहार की जनता ने किया है। तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा और विकास के भगीरथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर। देवेंद्र शुक्ला जी, जब इन चुनाव को अलग अलग नजरियों से हम समझ रहे हैं और कई मायनों में जिस हिसाब से ऐतिहासिक राम ने बात कर ली, वोटर टर्नआउट के हिसाब से बात करें, महिलाओं के प्रतिशत के हिसाब से बात करें, युवा जिस तरह से आ गया है, और अभी जैसा डॉक्टर कुमार ने बताया भी कि पुनर्मतदान इस बार नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल रही है। लेकिन क्या ये चुनाव इस मामले में भी एक टर्निंग पॉइंट माना जाएगा कि अब बिहार में परफॉर्मेंस बेस्ड चुनाव लड़े जाएंगे, इश्यूज की बात होगी? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा जिस तरह से आरजेडी ने भी बात की, तेजस्वी यादव के मुंह से हम बातें सुनते आए, इश्यूज की बात ज्यादा हो रही थी। तो हम माने कि अब थोड़ा सा कास्ट और रिलीजन से आगे बढ़कर बिहार का जो यूथ है, बिहार के जो वोटर्स हैं, वो अब इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की ज्यादा बात करेंगे? देखिए, जब भी कोई चुनाव लड़ा जाता है, ये मतलब सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, ये सारे स्टेट्स के लिए एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जब भी कोई चुनाव लड़ा जाता है तो एक कोई दल या दलों का गठबंधन जो है वो सरकार में होता है और दलों का ही गठबंधन या कोई दल जो है वो विपक्ष में होता है। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के मुद्दे क्या हैं? विपक्ष के पास आमतौर से मुद्दा ये होता है कि सत्ता पक्ष ने ये नहीं किया, और सत्ता पक्ष जो है वो ये बताने की कोशिश करता है कि हमने ये नहीं किया, ये किया। अब यहाँ पे जब चुनाव के दौरान ये 5 साल तो ये चीज़ चलती रहती है, जब चुनाव होता है तो जनता की अदालत में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जाते हैं और वहाँ पे वोटर के सामने अपनी अपनी बात रखते हैं। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की जो हम बात करते हैं वो यही है कि अगर मतदाताओं के बीच ये माइंडसेट बना हुआ है कि सरकार ने तुलनात्मक रूप से बेहतर काम किया है तो वो एक तरीके से बिहेव करती है, और अगर नहीं किया है तो दूसरी तरीके से बिहेव करती है। इसी आधार पे आप देखते हैं कि सरकारें आती और जाती हैं या रिपीट करती हैं।
अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो आपको ये बड़ा रोचक लगेगा कि 2015, 20 और ये जो 25 का इलेक्शन हुआ है, इन 3 इलेक्शंस में अगर आप देखें तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में बहुत छोटे कार्यकाल के लिए जीतन राम मांझी जो है वो मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन मेजर जो है वो चाहे किसी भी दल के साथ, नीतीश कुमार की जेडीयू जो है आरजेडी के साथ भी गई और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी आए। फिर वो उन्होंने चुनाव 2015 का आरजेडी और कांग्रेस के साथ लड़ा था और 2020 का जो चुनाव था वो बीजेपी के साथ लड़ा था और 2025 में वो फिर लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ। तो वोटर्स के पास कंपैरिजन के लिए, पार्टी लेवल पे ही नहीं, वोटर के पास कंपैरिजन के लिए सरकारों के काम है कि जो गठबंधन की सरकारें थी, बीजेपी प्लस जेडीयू और जेडीयू प्लस आरजेडी, तो अब देखिए नीतीश कुमार तो एक फेस हो गए। इसके बाद जनता को यह डिसाइड करना था कि ये जो दोनों गठबंधन बनते हैं इनमें से बेहतर कौन परफॉर्म करता है। आपको 2015 का इलेक्शन अगर याद होगा तो उसमें आरजेडी और जेडीयू ने लगभग क्लीन स्वीप किया था, जबकि 2014 में उसके कुछ महीनों पहले ही जो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी ने जेडीयू के अलग होने के बाद भी जिस तरीके से सीटें ली थी उसमें मेजर अनुमान यही था कि बीजेपी जो है वो अगला जो चुनाव होने जा रहा है उसमें किसी भी दल को बिल्कुल जमीनी स्तर पर साफ कर देगी। ऐसा हुआ नहीं था। तो बिहार में गठबंधनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकारों की तो बात हो गई कि एंटी इनकम्बेंसी होता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, ये एक फैक्ट है। दूसरा है कि जब ये दलों के गठबंधन की जो सरकारें हैं इनको लोगों ने परखा। आप सिर्फ जंगल राज की बात मत करिए कि एक जो नई जनरेशन आई है वो पिछले नीतीश कुमार के कार्यकाल अगर को देखें आप तो अगर 2005 से 25 के बीच में 20 साल देखते हैं तो 18 साल पे हमारे यहाँ वोटर बन जाता है आदमी। तो 18 साल में एक नई जनरेशन ऐसी आई है जो पूरी तरीके से, जिसने किसी जंगल राज को कुछ नहीं देखा था, उसने सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के शासनकाल को देखा था। तो उसके सामने भी यह विकल्प था कि वो जंगल राज की बातों को सुन के कोई डिसीजन लेता या वो रिसेंट के जो कार्यकाल में गलतियां हुई या अच्छाइयां हुई उनको देख के डिसीजन लेता। तीसरी चीज है कि हमारे यहां वोटर जो है वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो हुआ कि महिला वोटर, पुरुष वोटर और थर्ड जेंडर भी वोटर इंक्लूड किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की ओर से। आप बिहार के इलेक्शन को देखिए तो आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार जो है 60% प्लस में गया है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि 60% प्लस जो है वो क्या कहते हैं कोई बहुत शानदार किस्म का है। 65% के आसपास टोटल वोटर टर्नआउट है, तो बहुत वो शानदार है। लेकिन बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो 65% का वोटर टर्नआउट आया है ये अपने आप में बहुत रिमार्केबल है। और ऐसा क्यों हो पाया? अगर कोई मुझसे पूछेगा कि बिहार में क्या 2020 में ये वोटर टर्नआउट आता था, आ सकता था, मैं कहता बिल्कुल आ सकता था। बिहार में 2020 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो वोटर टर्नआउट था वो 59% के आसपास था। बिहार पूरी कंट्री में सबसे नीचे, मतलब वोटर टर्नआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे नीचे वाला स्टेट है, चाहे आप बड़ा स्टेट लें चाहे छोटा स्टेट लें। मतलब आप मेघालय की भी बात करेंगे तो मेघालय में तो वोटर टर्नआउट बहुत होता है, नागालैंड में बहुत होता है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं आपका छत्तीसगढ़ वहां बहुत होता है, ठीक। लेकिन बिहार एकमात्र उत्तर भारत का ऐसा राज्य था जो पॉलिटिकली बहुत जागरूक होते हुए भी वोटर टर्नआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से 60 के नीचे डिविजनर ही होता था। तो बिहार पहली बात तो इस बार क्या कहते हैं बिहार का जो वोटर है उसने एक इनिशिएटिव लिया और वो जो है वो जिसे कहते हैं कि वो वोटर टर्नआउट के पॉइंट के व्यू से 61% या 64% पहुंच गया, तो फर्स्ट डिविजनर स्टेट बन गया। अब बिहार उन्हीं स्टेटों की श्रेणी में है जैसे उत्तर प्रदेश में भी होता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि SIR जो ये वोटर रिवीजन की एक्सरसाइज पूरी की गई है। देखिए अगर इस कमरे में 3 लोग बैठे हुए हो, इसमें से चारों लोग वोट, अगर इस कमरे में 4 लोग बैठे हुए, चारों लोग वोट करें तो वोटर टर्नआउट 100%। 2 लोग गायब हो जाएं 50%, मतलब वोटर तो आप तब भी हैं लेकिन 50%। SIR ने क्या किया? SIR ने यह किया कि उसने एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाया कि जो किसी भी कारण से बिहार को छोड़ के जा चुके थे या बिहार में नहीं रह रहे थे, किसी दूसरे स्टेट में रोजगार या किसी मुद्दे को लेके गए थे और वहां के वोटर थे, उनको वोटर लिस्ट से बाहर किया। जो लोग कई सालों से जिसे कहते हैं कि इस दुनिया में है ही नहीं, उनको भी निकाला, ठीक। तो मुझे ये कोई बताए कि भाई ये जो 3 तरीके की एक्सरसाइज हुई है इसमें प्रॉब्लम कहां है? अब देखिए, अब आते हैं कि मुद्दे। पूरा जो विपक्ष है उसने पूरा सबसे बड़ा जो कैंपेन चलाया वो ये चलाया कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। अरे भाई, यही इलेक्शन कमीशन जो था उसने जब
2024 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहा था, तब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी वो सबसे बड़ी पार्टी बनी इसी इलेक्शन कमीशन के अंदर, और जातिगत समीकरणों और उन सब की बात करते हुए। तो बिहार में यह मुद्दा उठाया गया जो कि गलत चुना गया, कि अगर आप जनता से जुड़े मुद्दे चुनते तो शायद बिहार के रिजल्ट कुछ बेहतर होते विपक्षी दलों के लिए। तो पहली बात तो आपने गलती ये की कि आपने मुद्दा गलत उठा लिया। दूसरी बात है कि वोटर के पास कंपैरिजन के लिए ये चीज थी कि भाई दोनों दलों में बेहतर कौन करता है, तो उन्होंने जो दल परफॉर्म कर रहा था, जिसके पास स्कीम थी वेलफेयर, उनके साथ वो गया। ठीक है अदिति, अगर बाकी पार्टियों के नजरिए से थोड़ा सा जो ये ट्रेंड्स हैं हम उन्हें समझें तो आप इसे कैसे देख रही हैं? आरजेडी की बात करें, तेजस्वी का पीछे चलना, तेज प्रताप का पीछे चलना, पप्पू यादव का हार को स्वीकार कर लेना, जन स्वराज पार्टी जो दावे कर रही थी उसका खाता तक ना खुलते देखना, किस तरह से आप इन ट्रेंड्स को समझेंगी? देखिए, जो सबसे डोमिनेंट ट्रेंड इस इलेक्शन का आउटकम दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि ये एक प्रो इनकम्बेंसी मैंडेट है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए ये एक री इलेक्शन का मैंडेट है, वो बहुत क्लियर है, वो एक बड़ा पैमाना है इस इलेक्शन के रिजल्ट से साफ नजर आ रहा है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो एक्सपेरिमेंट किया है कुछ पार्टीज ने, जैसे कि जन स्वराज पार्टी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव में बहुत जोरों शोरों से एक डेब्यू किया था 2013 में, फिर 2015 में शीला दीक्षित को हरा के, वैसी ही एक एक्सपेरिमेंट प्रशांत किशोर ने करने की कोशिश की बिहार में। लेकिन मुझे लगता है ऑल्दो बहुत पहले वाले फेज में प्रशांत किशोर ने कुछ अपील की वोटर्स को और उनका कुछ एक ट्रैक्शन भी बनने को आ रहा था, लेकिन उनका टर्निंग पॉइंट तब हुआ जब उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्योंकि पहले आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि वो इलेक्शन में खड़े होंगे और वो तेजस्वी यादव की सीट से लड़ेंगे, और ऐसा कुछ हुआ नहीं, और उसके बाद वो मोमेंटम वो लूज करते चले गए। दूसरा, हमें ये देखना होगा कि जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं जो कि एनडीए के गठबंधन के साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी नजर आ रही है। पिछले इलेक्शन में जेडीयू को जो भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था, क्योंकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी अलग जाके लड़ी थी, वो एनडीए का हिस्सा नहीं थी 2020 के इलेक्शन में। आपको याद होगा कि उस इलेक्शन में जेडीयू की परफॉर्मेंस बहुत नीचे चली गई थी, 43 सीट्स वो जीत पाए थे, और उनकी हार का सबसे बड़ा आकलन का नतीजा ये निकला था कि क्योंकि चिराग पासवान ने 135 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, उन्होंने भारी डैमेज पहुंचाया नीतीश कुमार को। तो इस बार एलजेपी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, माझी ऑलरेडी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, और राष्ट्रीय लोकमंच भी इस बड़े कोएलिशन का हिस्सा है। तो एक जिसको कहते हैं रेनबो कोएलिशन ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटीज, वो इकट्ठा होकर बहुत इंपॉर्टेंट एक कोएलिशन बन गया है। तो हमें यह भी देखना होगा कि इस कोएलिशन में दलित रिप्रेजेंटेशन भी है, इसमें माझीज भी हैं, इसमें अपर कास्ट, भूमिहार, हर तरीके की ईबीसी की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अब आउटकम मैं अभी देख रही थी, मैं माधेपुरा की सीट को एनालाइज कर रही थी। आप लोगों को उस सीट को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। पूरी बिहार की इलेक्शन हिस्ट्री में माधेपुरा एक ऐसी सीट है जिसने कभी भी नॉन यादव कैंडिडेट को इलेक्ट नहीं किया, लेकिन आज कविता साहा वहां से लीड कर रही हैं, चंद्रशेखर जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं वो वहां से ट्रेल कर रहे हैं। तो एक तरीके से अगर माधेपुरा को केस स्टडी की तौर पे लिया जाए तो कास्ट फैक्टर भी यहाँ पर डिसमेंटल होता हुआ नजर आ रहा है। एक रेनबो कोएलिशन, अच्छी गवर्नेंस, एक उम्मीद भरी राजनीति, तो एस्पिरेशनल इंडिया जो है वो इस चीज को आगे देख रहा है। थोड़ा सा इसी में आप सीमांचल को भी ऐड करें, क्योंकि सीमांचल हम जानते हैं मुस्लिम बहुल इलाका है। एआईएमआईएम की बात करें तो वो जिस तरह से सीटें जीत रही थी, अभी ये दिख रहा है कि 2 सीटों पर ही वो थोड़ा आगे है। तो यहाँ पर भी एक बड़ा उलटफेर है, इसे कैसे समझें हम? देखिए, सीमांचल में भाजपा ने बहुत टारगेटेड कैंपेन किया था। अगर आप भाजपा के लीडर्स का कैंपेन वहां देखेंगी, वहां प्रधानमंत्री खुद भी गए, उन्होंने कटिहार में भी रैली करी, और अमित शाह जी वहां पर बहुत कैंपेन कर रहे थे, बहुत देर तक वो वहां पर कैंप भी किए। तो सीमांचल में भाजपा की स्ट्रैटेजी क्लियर थी कि हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जो चुनाव आयोग करवा रहा है, उसको एक मेजर प्लान बनाकर ये मैसेज देंगे वोटर्स को कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को बिल्कुल भी यहाँ रहने नहीं देंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में अपनी हर रैली में कहा कि मैं एक एक इन्फिल्ट्रेटर को जो इलीगल है इस देश से बाहर निकालने का काम करूंगा। तो एक क्लियर मैसेज काउंटर कंसोलिडेशन का भी जाता है ना। जिस तरीके से मुस्लिम यादव बेल्ट मानी जाती है सीमांचल की, अगर हम ये एसेस करें और ये फैक्टर करें कि मुस्लिम और यादव इकट्ठे होकर तेजस्वी यादव और कांग्रेस को वोट करेंगे, जैसा कि किशनगंज में आपने देखा, जो सीमांचल की बहुत इंपॉर्टेंट किशनगंज जो डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, 68% मुस्लिम्स हैं वहां, और हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज भी वहीं रिकॉर्ड हुई है। तो अगर आप देखेंगे कि एक तरफ की कंसोलिडेशन हो रही है वोट्स की, तो एक काउंटर कंसोलिडेशन भी नेचुरल है राजनीति में। जो काउंटर कंसोलिडेशन करने में ऐसा लगता है कि एनडीए गठबंधन अच्छी तरह से कामयाब हुआ है। तो उसमें क्या हुआ है कि एक तरफा वोट पड़ा है, ये उस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। और दूसरा फैक्टर सीमांचल में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर है। उन्होंने आज भी कुछ सीटें वहां पर अर्जित की हैं। मुझे अभी लेटेस्ट टैली नहीं पता, जितना मैंने लास्ट देखा था 2 से 3 सीट्स पर वो लीड कर रहे थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पिछले इलेक्शन में इनफैक्ट सबसे बुरी परफॉर्मेंस तेजस्वी यादव की पार्टी की रही थी सीमांचल में। महज 2 सीटें वो जीत पाई थी। कांग्रेस की अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि एआईएम ने मुस्लिम वोट में भी सेंध की है और भाजपा ने काउंटर कंसोलिडेशन अच्छी की है अपनी इलीगल इमिग्रेशन वाली जो उनका प्लान है उसको लेकर। लेकिन सबसे जो बड़ी न्यूज है आज की वो ये है कि प्रशांत किशोर, इतने बड़े इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट जिन्होंने कितने लोगों के इलेक्शंस लड़वाए, 2014 के इलेक्शन से वो लाइमलाइट में आए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े बयान दिए इस इलेक्शन में। उन्होंने सबसे पहले कहा कि अगर जेडीयू 25 सीटें क्रॉस कर गई इस इलेक्शन में तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो ऑब्वियसली वो एक चुनावी जुमला ही साबित होगा, क्योंकि राजनीति तो वो नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि या तो हम फर्श पार करेंगे या अर्श पार करेंगे। तो क्लियर सी एक आउटकम आई है कि अर्श तो नहीं लेकिन फर्श पार तो हो ही गया है जनसुराज पार्टी का। तो छोटी पार्टीज का एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली फेल हो गया है। और जितना भी ऐसा लगता है कि जेन जी वोटर है, आप ये भी ध्यान में रखिए कि बिहार यंगेस्ट स्टेट है इंडिया का। अगर आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें और सेंसस के फिगर्स को देखें तो आप पाएंगे कि 40% जो बिहार की पॉपुलेशन है वो 18 साल से नीचे की पॉपुलेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट जेनजी पॉपुलेशन है इस स्टेट की। तो इस स्टेट का डायनामिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है आज के आउटकम से ये आंकलन क्लियर हो जाता है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स ने भी एनडीए गठबंधन में अपनी उम्मीद जताई है, महिलाओं ने तो जताई ही है, मुस्लिम इनफैक्ट यादव बेल्ट्स में भी ये लोग जीते हैं। I think that's a very interesting point that you make, because when it came to Bihar, MY factor was standing solidly behind the Lalu Prasad faction. We've seen that historically, although not much seems to have changed as far as RJD's support base is concerned, because I'm looking at the Election Commission website, and if you look at the vote percentage that all parties have secured, the BJP at the moment is leading on 85 seats, but its vote share is somewhere around 21.38%. The JDU is at second place, leading on 78 seats with a vote share of 18.86%. The RJD, a distant third, leading only on 32 seats at the moment, has a vote share of 23.03%. So that clearly reflects the consolidation point that you were making. It's consolidation. The consolidation has happened on both sides. So while the MY, the Muslim Yadav combination, traditionally has stood behind RJD, it seems it has worked for them this time also. But the NDA has managed to build up another MY for themselves, which is Mahila and Yuva. As you rightly said, the Gen Z and the youngsters have stood solidly behind the NDA, making it an issue-based election, perhaps focusing more on which party or which alliance is going to focus mostly on development of the state and take it out from the shadow of being a Bimaru state. देवेंद्र जी, ये जो वोट शेयर है, इस पर एक प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी कि आरजेडी 32 सीट्स पर ही है, देखिए वोट शेयर उनका बड़ा आप मुस्कुरा भी रही हैं, तो ये किसी के लिए भी बड़ी रोचक सी बात हो सकती है। आरजेडी जो वोट शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा दिख रही है, वो इस कारण से नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस सबसे ठीक ठाक है। आप अभी सीटों की बात नहीं कर रहे, सीट में ट्रांसलेट ही नहीं हो रही, सीट में ट्रांसलेट के छोड़ दीजिए आप। आरजेडी ने पिछले बार की तुलना में शायद ज्यादा वोट पाए, हाँ। आप देखिएगा,
ठीक, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आरजेडी के नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, 163 के आसपास वो लड़ रही है, बीजेपी 101, आपका जेडीयू 101, इसके बाद जो आपका उनके जो सहयोगी दल हैं उनकी सीटें हैं। तो ये जो बढ़ा हुआ है कि हर मतलब मैं 43 सीटों पे बीजेपी की तुलना में लगभग जो है मैं 43 सीटों पे या 62 सीटों पे ज्यादा लड़ रहा हूं, तो ये तय सी बात है कि मेरा वोटर टर्नआउट जो है वो बढ़ा हुआ दिखेगा। दूसरी बात है कि सीटों में रिफ्लेक्शन ये क्यों नहीं दिखाई देगा। तो देखिए, मैंने पहले क्या कहा था, पहले मैंने कहा था कि सरकारों की तुलना होती है, फिर मैं कह रहा हूं कि विधायकों की भी तुलना होती है। आरजेडी आज क्यों 31 पे है? पिछली बार वो सबसे बड़ा दल थी, पिछली बार वो सबसे ज्यादा वोट शेयर के साथ सबसे बड़ा दल थी, और बीजेपी उससे कम वोटों के साथ, कि बीजेपी 19 पॉइंट समथिंग % के आसपास थी, और बीजेपी की सीटें जो है वो 72 के आसपास थी, 5 सीटों का गैप था। जेडीयू वो 16% के आसपास थी, और उसका जो सीटें थी वो बहुत ही कम थी, 42 के आसपास थी। अब हुआ क्या था कि आरजेडी अपने पीक को, मतलब अपने जो विधायकों की पीक को था पिछले कई इलेक्शंस में, वो पहले ही 2020 में पा चुकी थी। तो जब आप विधायक होते हैं किसी सीट के, ठीक, तो जब आप किसी सीट के विधायक होते हैं तो लोग आपके काम को देखते हैं, सरकार का काम तो अलग है, सरकार के पास मैं रोज नहीं आऊंगा, विधायक बनते ही इसीलिए हैं कि जनता सीधे इंटरेक्ट करे विधायकों से। तो आरजेडी की बेसिक प्रॉब्लम यह थी कि 77 जो लोग थे उनकी परफॉर्मेंस को जनता को जज करना था। और गजब की चीज यह है कि बाकी दुनिया के काम तो आप करते रहे, लेकिन एक ढंग का, जिसे कहते हैं कि एक ग्राउंड लेवल सर्वे ढंग का करवा के आप ये देख लेते कि ये 77 में से परफॉर्मिंग कितने हैं और नॉन परफॉर्मिंग कितने हैं। अच्छा, शायद वो देख भी लेते तो भी उन्हें कोई फायदा ना होता। क्यों ना होता? क्योंकि परफॉर्मेंस देने वालों की कोई संख्या थी ही नहीं, तो उन्होंने टिकट जो है वो रबड़ियों के तरीके बांट दिए। ठीक, कि 77 लोग थे तो उन्होंने मोस्टली जितने लोग थे या तो उन लोगों को दे दिया टिकट, और नहीं तो उनके परिवार में बांट दिया। बीजेपी और जेडीयू ने ये नहीं किया। जहां भी उनको लगा कि नहीं ये विधायक ठीक नहीं है, ये जो बीजेपी और जेडीयू और जो उनके एलाइज का गठबंधन है, इन्होंने सीटों की रिशफलिंग की है कि जहां उनका पिछली बार था, क्योंकि इसमें क्या कि जैसे एलजेपी को आप जोड़िए तो एलजेपी लास्ट टाइम नहीं थी, तो बीजेपी ने अपनी बहुत सारी सीटें जो एलजेपी के हिस्से में दी हैं, बहुत अच्छी सीटें दी हैं। तो ये गठबंधन के हिस्से में भी जो वोट शेयर है, आप जब पूरा वोट शेयर लगा के देखेंगे कि मतलब बीजेपी का आप जोड़िए, जेडीयू का जोड़िए, और इसके बाद एलजेपी का जोड़िए, फिर जीतन नाम की पार्टी का जोड़िए, जब आप ये लगा के देखेंगे तो दोनों में कोई मैच नहीं दिखाई देगा। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जयललिता ने अपने जमाने में, कि एक समय ऐसा था कि जयललिता ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ा और उनकी सीटें उनके स्टेट में 0 थी। उनसे बड़ा दल, मतलब उनका वोट शेयर जो है वो किसी भी दल की तुलना में सबसे ज्यादा था, उनका वोट शेयर किसी भी दल की तुलना में सबसे ज्यादा था, और उनकी सीटें 0 थी। उनसे ज्यादा सीटें जो 2 सीट पे लड़ने वाली पार्टी थी अलायंस में, कि डीएमके कांग्रेस और अलायंस में सीपीआई सीपीएम इन सब की थी। तो वोट शेयर जो है वो रिजल्ट्स का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। वो एक फेस सेवर हो सकता है, खासकर अलायंस में नहीं होता। ये एक फेस सेवर हो सकता है इस अलायंस के लिए इस इलेक्शन में, क्योंकि अभी तो ट्रेंड के हिसाब से एक स्वीपिंग मेजॉरिटी है। आगे चर्चा करें उससे पहले सुनते हैं कांग्रेस के नेता शशि थरूर और बीजेपी के नेता मनोज तिवारी की क्या प्रतिक्रिया है अभी के ट्रेंड्स के हिसाब से। देखिए, इस जीत का कारण एकमात्र है, वो है मोदी जी और नीतीश जी में बिहार की जनता का विश्वास। ये जीत है विश्वास की, मोदी नीतीश से आस की, जो बुझी है उस विशेष प्यास की। ये जीत है बिहारियों के अरदास की। बिहार के लिए बिहार जिंदाबाद, बिहार की माताएं बहनें जिंदाबाद, युवा जिंदाबाद, सड़कें जिंदाबाद, ब्रिज जिंदाबाद, गांव-गांव की गली जिंदाबाद, गरीब को अनाज इलाज जिंदाबाद। तो धीरे धीरे ना विश्वास, शासन करके विश्वास कैसे पैदा करते हैं, ये मोदी जी से और नीतीश जी से सीखना पड़ेगा। ऊपर से सोने पे सुहागा हो गया चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी, ये पांडव जो है ना कमाल हैं बिहार के। But I will say that on a matter like this, it's very important that we look at the totality of our performance. You know, elections are about a number of factors. There is, of course, the popular mood. There is the question of organizational strengths and weaknesses. There is the question of the messaging. A lot of issues which will have to be looked at and to see what went right, what went wrong.
But let's wait for the final results before we make a call. डॉक्टर कुमार, जो प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं वो आप सुन रहे हैं, कहाँ मंथन में कमी रह जा रही है? क्योंकि परफॉर्मेंस का बार बार नीचे जाना, खासकर जब हम शशि थरूर जी को सुन रहे थे, कहाँ मंथन में कमी रह रही है? देखिए प्रीति जी, ये मंथन में कमी इसलिए रह रही है क्योंकि बिहार का जो वोटर है वो बहुत ही एस्पिरेशनल वोटर है। और हम सब चर्चा करते हैं, हर स्टेट में चुनाव होता है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, लेकिन आप देखिए कि बिहार को खास करके चुनाव को लेकर, इलेक्शन को लेकर जिस तरीके से एक चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया, हर व्यक्ति जैसे चर्चा में लेके आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जो अभी आपने बताया कि अपोजिशन का जो भूमिका होता है, अपोजिशन की भूमिका होती है एक रचनात्मक विरोध करना। लेकिन आप देख सकती हैं कि जब से वहाँ पे बिहार में जो अपोजिशन है, खास करके तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और उसके पहले लालू जी का जो इतिहास है, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कि आरजेडी एक फैमिली लिमिटेड पार्टी है और एक मुख्य विपक्षी की भूमिका के रूप में वहाँ पे काम करती है। लेकिन आप उसके पिछले जो इतिहास है, जो लालू जी के 15 साल के जो शासन काल रहे हैं, उसका भी इनको इम्पैक्ट मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से अभी हमारी को पैनलिस्ट अदिति जी ने जो बताया कि युवाओं का जो 40% जो वोट है, और अभी शुक्ला जी भी जो बता रहे थे कि जो वहाँ पे जिस तरीके से युवाओं ने जो जन्म लिया 2005 में, वो लगभग 18 साल का फर्स्ट टाइम वोटर है और इस बार लगभग 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स ने वहाँ पे वोट किया। तो इन सब में कहीं ना कहीं तेजस्वी उस चीज़ को मीट नहीं किए। और जो एक विपक्ष की भूमिका में जिस तरीके से उन्होंने स्लोगन दिया, क्योंकि आज की जो जनता है या बिहार की जो जनता है वो वर्तमान में चलना चाह रही है, और जिस तरीके से नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार ने और मोदी जी के केंद्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार से वहाँ पे लोगों को अपने योजनाओं से जोड़ा है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट किया है ग्राउंड पर, और वही वोट में दिख रहा है। और इसीलिए आज आप देख सकते हैं कि उनके जितने समीकरण, चाहे माई समीकरण हो, इवन जो VIP एक पार्टी है उसका है, फिर एक वहाँ पे ऑलरेडी एक पार्टी गुप्ता जी की एक पार्टी इंजीनियर पार्टी बन के आई हुई थी, इन सब लोगों ने जिस तरीके से जो एक समीकरण बना, वो समीकरण सारे ध्वस्त होते हुए दिख रहे हैं। और नो डाउट उनका जो वोटिंग परसेंटेज है, जो अभी आपने दिखा रही थी, उनका वोट इंटैक्ट है, लेकिन वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से उनका पोलराइजेशन हुआ उसी तरीके से अपोजिशन में भी वो सारा वोट पोलराइजेशन हुआ, और जिसके चलते आज जो मैंडेट हम सबको दिखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का अभी जो रुझान दिख रहे हैं, वो शाम तक आते आते जो 2010 का जो एक NDA गठबंधन का जो वोटिंग जो मैंडेट रहा है, वो शायद हो सकता है कि रिफ्लेक्ट करे और उस रिकॉर्ड को तोड़ दे। और इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे बिहार को आप देख लीजिए, अगर योजनाओं के माध्यम से मोदी जी ने जब वहाँ पे गए हैं, जो पैकेज दिया उन्होंने, चाहे उसके स्पेशल पैकेज की जो बात हुई हो, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से खड़ा किया जा रहा है, हम वैसे भी जब हम किसी भी राज्य के डेवलपमेंट की जब तुलना करते हैं और जब सरकार की तुलना करते हैं, तो पिछले 10 साल पहले किस तरीके से केंद्र, जब UPA सरकार थी तो वहाँ पे बिहार के लिए क्या किया, और NDA सरकार 2014 के बाद से आने के बाद से क्या काम किया, तो जब आप इसका तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा तो हर सेक्टर में कहीं ना कहीं वहाँ पे हर व्यक्ति को उस स्कीम के साथ अपने आप को जोड़ते हुए पाता है। और इसीलिए आज रिजल्ट सब किसी को ये दिख रहा है। और मुझे लगता है कि जो NDA गठबंधन है वो बिल्कुल पहले से ही, आप एग्जिट पोल में भी देख सकती हैं, मुझे लगता है कि 6 चुनाव के बाद पहली बार एग्जिट पोल सही होते हुए दिख रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इसके पहले जितने भी एग्जिट पोल आए थे, उस सब में जो एग्जिट पोल आ रहे थे वो शायद रिजल्ट में परिलक्षित नहीं हो रहे थे, लेकिन अभी कल का जो एग्जिट पोल आया है, और तो मुझे लगता है कि ये चीजें कहीं ना कहीं still the exit polls didn't give this kind of an absolute majority to the NDA. All of the exit polls, they suggested a clear-cut majority for the ruling alliance, but this kind of a mandate, which could perhaps by evening go beyond the 2010 numbers, is certainly historic for the NDA itself, for all of the alliance partners, which include the BJP, the JDU, not just in terms of improving their vote share, but all of them translating into significant number of seats, which will ensure a 2/3 majority. For the moment, the trend suggests 2/3 majority. Whether they will bypass the 2010 number, we will have to wait at least till evening for the results. From what you spoke about the aspirations and connecting it to what Ms. Aditi Tandon spoke about, Bihar being the youngest state, there are so many first-time voters also who don't know about the law and order situation of what was described as Jungle Raj, that became a significant issue ahead of this election as well. So I'll try and join the 2 points and come to you, Ms. Aditi Tandon, to understand the fact about the Gen Z, of course, making a decisive choice and shifting towards the NDA. But how much of an impact do you also think
technology, the access to internet penetration, access to easy information, the ability to filter out between what's propaganda, what's information. Perhaps that kind of ability could also be one of the driving factors behind this kind of mandate that we are seeing, that maybe the youngsters are now able to understand who will be able to deliver on the kind of promises that they are making, which is feasible for us, and perhaps which is the one we should stick to. Yeah, Tina, I agree with your point that, you know, access to information, access to technology enhances democratic capability of a nation. You know, simply because information is the basis for informed choices that people make. But it can also be counterproductive. Let's not forget that not everything that is accessible on social media platforms is credible news. A lot of it is fake, and like you said, that you know, not everybody has the capacity to sift the chaff from the essential. We do hope that in a democratic country like India, which has very deep roots in constitutionalism and everything, people are able to make out the difference between what is right and what is wrong, what is false and what is true. What I broadly observe from this particular election trend is that Gen Z has made itself heard, and heard very eloquently. Why I say this, Tina, is because Rahul Gandhi was directly appealing to the Gen Z in all his presentations on the alleged voter theft issue that he made. You know, he's made 3 presentations already. His appeal in the last such presentation, which was right on the eve of the first phase of assembly elections in Bihar, he made a press conference on November 5. And he went on to directly engage the Gen Z, and he actually told them that it is now up to the Gen Z to restore democracy in India. So, well, if that was Mr. Rahul Gandhi's pitch on the eve of Bihar elections, then he needs to introspect and analyze whether the Gen Z has spoken out aloud, because Gen Z has participated in Bihar elections. They have not bought his pitch that there was voter theft in Bihar, because had they bought that pitch, they would have sat at home and not participated in elections. So what has happened is that the youth of Bihar has reposed complete faith in constitutional and democratic institutions of the country. The Election Commission's special intensive revision of electoral rolls, which is a constitutional exercise, yes, there were some genuine concerns that it could have been perhaps conducted earlier or later. Now that's an academic exercise. Supreme Court spoke in favor of SIR, and yet the opposition continued to hammer that issue, especially the Congress. And look where they are with that issue. Their main plank in Bihar elections was that there has been a voter theft in election after election in the country. But clearly the youth have not bought that argument of Mr. Rahul Gandhi. Also, if the intention of the opposition was, or if their urge was, that something like what happened in Nepal or something like what happened in Sri Lanka should happen in India, well, that's not going to happen, because India is not only a regional giant as far as development and governance is concerned. India is a resilient, alive and kicking democracy, and nothing is going to change that. So the Congress has to take that lesson home, go back to the drawing board and come back to the people with a credible alternative narrative. They cannot base their politics on frustration and negativity. That's not what people are going to buy. Election after election, Congress is the story. They are being rejected. I would still give some points to Tejasvi Yadav. You know, he still managed to retain his vote share. Where is the Congress as the principal opposition party of the country? It has a responsibility to a constitutional republic. It must ensure that it stays strong, because a strong opposition is required for a strong nation. But this is not the way you engage the voters. You cannot engage an aspirational India on a continuum of negativity, continuum of frustrated politics. You have to find an alternative dictum. You have to appeal to the youngsters. You have to appeal to women. You have to sound credible, and you have to sound like you mean what you say. So it appears that the firm rejection of the Mahagathbandhan, they really have to do some introspection here, is not a good sign for Indian democracy. डॉक्टर कुमार, बिल्कुल, अब इसको अगर थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर पर हम समझने की कोशिश करें
तो जो अलायंस की पॉलिटिक्स है उसे लेकर बिहार चुनाव के जो अभी तक रुझान हमें दिख रहे हैं उसके क्या संदेश जाते दिख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ महागठबंधन जहां फ्रेंडली फाइट का नुकसान होता दिख रहा है, दूसरी तरफ एनडीए जहां आपको साथ आने का फायदा होता दिखाई दे रहा है, तो कैसे इसको नेशनल लेवल पर समझा जाए? देखिए प्रीति जी, राष्ट्रीय स्तर पे ये जो महागठबंधन है पूरी तरीके से विफल है और आप देख सकते हैं कि इन लोगों के जितने भी पॉलिटिकल जो भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप नॉर्थ से लेकर साउथ देख लीजिए, ईस्ट से लेकर वेस्ट देख लीजिए, वो सारे एक तरीके से फैमिली रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बन के रह गए। और उसमें जो सबसे बड़ा धड़ा जो कांग्रेस है, जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और जिसका नेतृत्व राहुल जी कर रहे हैं, तो आप समझ सकती हैं कि वो एक लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में किस तरीके से कभी वो कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बनाते हैं, कभी वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ वो बोलते हैं, उनकी मिमिक्री करते हैं। जिस तरीके से अभी चुनाव आयोग को लेकर उन्होंने वोट चोरी को लेकर जो एक कैंपेन चलाया और कभी वो हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो भारत की जो जनता है, और ऑब्वियसली कि आज का जो युग है वो नॉलेज वर्ल्ड का युग है और इसमें इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन्स। और भारत का जो नागरिक है वो डे बाय डे पिछले 78 साल में अपने आप को इंप्रूव किया है। और अभी जो एक तरफ जो दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन है, जो मोदी जी के द्वारा जो नेतृत्व की जा रही है, आप देख सकते हैं कि इसमें छोटी से छोटी सूचनाओं को बूथ स्तर पर कैसे लेके जाना है, बूथ मैनेजमेंट कैसे करना है, बीएलओ के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, उनके जो कैबिनेट लेवल के जो मंत्री हैं वो बूथ स्तर पर जाके किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस भारत जैसे जो 140 करोड़ की जो आबादी है उसमें चुनाव एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसमें विश्व के बहुत सारे एजेंसियां की इस चीज को रिसर्च करते हैं, लेकिन इसके पीछे आप देखें तो संगठन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो और आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी लेड जो एनडीए गवर्नमेंट है, इसका जो संगठन जो इतना डे बाय डे मजबूत होते जा रहा है और लोगों को जोड़ रहा है, तभी जाके आज हम यहाँ तक ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो इस पोजीशन तक पहुंची है, यहाँ तक पहुंची हुई है। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन को इस चुनाव से उन्हें सबक लेना चाहिए कि किस प्रकार से हमें जनता के बीच में जाना है, हमें विरोध के लिए विरोध नहीं करना है, जो हमारा रचनात्मक जो विरोध की जो भूमिका होती है उसको लेके जाना है। और क्योंकि देखिए आज हम अर्थव्यवस्था से ही हर चीज को जोड़ के देखते हैं। आप देख लीजिए जिस तरीके से, चाहे अगर विदेश नीति को लेकर देख सकते हैं, हर लेवल पे जिस तरीके से यहाँ की अपोजिशन ने जिस तरीके से इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिसाइज किया है, जिस तरीके से वो विपक्ष एक एंटी नेशन स्टैंड के रूप में दिखते जा रहा है, तो मुझे लगता है ये देश की जनता समझ रही है। और बिहार का जो रिफ्लेक्शन है वो कहीं ना कहीं उसी चीज का रिफ्लेक्शन। अभी आप देख सकती हैं कल एग्जिट पोल आने के बाद से जो उनके जो रीजनल पार्टीज और कुछ लोगों ने नेपाल से तुलना की कि नेपाल में जैन जी का जो एक तरीके से जो रोड पे निकल के आए थे, बांग्लादेश से तुलना की। तो मुझे लगता है कि ये एक शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। I think they got the strategy wrong right from the start, because I recall just a day before the nomination also देवेंद्र जी उनकी लिस्ट नहीं आई थी, कैंडिडेट्स को उतना टाइम नहीं मिला कैंपेन करने का, और इलेक्शन में ये जरूरी है कि आप एक कनेक्ट एस्टैब्लिश करें। आज की डेट में आप टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन के आया है, लेकिन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि मिस कर दी। अगर हैड देयर हाउस बिन इन ऑर्डर, 20 years of anti-incumbency, और आप इस तरह का रिजल्ट देख रहे हैं that RJD coming down to 32, कांग्रेस at 4। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तो गलत था ही, लेकिन कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जिस तरह से अगर आप कंपेयर करें एनडीए और महागठबंधन का, तो कैसे क्या एनालिसिस रहेगा? देखिए पहले तो एक चीज ये क्लियर कर दो गठबंधन को लेके कि गठबंधन पॉलिटिक्स का भारत जैसे देश में जहाँ की सोसाइटीज में कास्ट डिवीजन जो है वो पाया जाता है, मतलब कि कास्ट डिवीजन इस तरीके का है कि हमारे यहाँ आरक्षण चलता है, ठीक है। अगर आप पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 के बाद स्टेट इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शन 4 जगहों पे हुए। पहला हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार। हरियाणा में बीजेपी ने रिपीट किया, महाराष्ट्र में बीजेपी बाद में आई थी लेकिन बीजेपी की ही मिलीजुली सरकार चल रही थी, उन्होंने रिपीट किया, लैंडस्लाइड। हरियाणा में भी लगभग लैंडस्लाइड, क्योंकि हरियाणा में सीटें हैं 90, उनकी सीटें जो है 50 के आसपास थी, हाफ ए मार्क से आगे थे। ऐसा ही रिजल्ट आता है हरियाणा में लैंडस्लाइड के मामले में। अभी आप जो रिजल्ट देख रहे हैं, तीसरा रिजल्ट ये है, मतलब चौथा झारखंड का था। झारखंड का रिजल्ट अलग था। झारखंड में बीजेपी से अलायंस के लेवल पे बहुत बड़ी चूक हुई। झारखंड में जैसे आप अभी ये देख रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस है, वहां पे जेएमएम और कांग्रेस का अलायंस था, ठीक। और वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़ा इंटैक्ट काइंड ऑफ वो था कि वहां पे एक तो ये है कि संथाल जो वोटर्स हैं वो ट्राइब्स में, झारखंड हमारी कंट्री के उन गिने चुने स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिए, मेघालय और असम, इन जैसे स्टेट्स को छोड़ दिए। अदरवाइज ऐसा स्टेट है कि वहां पे आपकी रिजर्व सीट एसटी की
एसटी की बात अभी नहीं कर रहा हूं, एसटी की सीट्स अच्छे नंबर में होती हैं। बीजेपी से वहां चूक क्या हुई थी? बीजेपी और गजब की चीज कि देखिए, बॉल अगर बहुत तेज आए आपकी तरफ, आप बैट्समैन हैं, तो बॉल अगर जितनी तेज आएगी उस पर छक्का मारना उतना आसान होता है। क्यों? क्योंकि बॉल इतनी तेजी से आ रही है कि आपको सिर्फ बैट लगाना होता है, बहुत ज्यादा पावर नहीं लगानी पड़ती। बॉल अगर धीमे आ रही है तो आपको छक्का लगाने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उसमें बॉल में उतनी ताकत है ही नहीं है, वो तो स्पिनर है ना। तो स्पिनर्स की बॉल पे छक्के जो हैं वो ज्यादा दम लगा के बनते हैं, फास्ट बॉलर्स के पे ऐसा नहीं होता। अब हुआ क्या था झारखंड में? झारखंड में बीजेपी से दो बड़ी चूकें हुई थी। पहला कि वो अपने अलायंस को चुनने में गलत साबित हुई। वहां पे महतो कम्युनिटी का बहुत बड़ा होल्ड है, कम से कम वो 20 सीटों को इंपैक्ट करती है। आजसू जो कि पहले उनका एलआई हुआ करता था, उसी को उन्होंने फिर ले लिया, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। बीजेपी की सीटें लगभग वही रही 2019 की थी, और बीजेपी को भी ग्रोथ नहीं मिली उससे, और आजसू को भी नहीं मिली। आजसू के अल्टरनेट में एक ऐसी पार्टी जो 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मतलब पार्लियामेंट्री इलेक्शन में असेंबली वाइज ठीक कर रही थी, झारखंड खाद्यान्न समिति करके पार्टी थी, उसने आजसू को बहुत पीछे कर दिया और उसने बीजेपी के साथ जो एलआई था उसका वोट भी काटा। झारखंड अकेला ऐसा स्टेट है जहां पे 2014 के बाद अगर आप इलेक्शंस को पढ़ें, दिल्ली भी उसका एक एग्जाम्पल है, बंगाल है, जहां पे कि बीजेपी किसी सरकार को रिप्लेस करने में नाकामयाब रही। एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त थी कि झारखंड में ऐसा कुछ अच्छा नहीं हुआ था कि सरकार रिपीट कर जाती, लेकिन आपने एलआई का न चुना और आप गायब हो गए। तो पहली बात तो अलायंस का अपना महत्व होता है। बिहार के रिजल्ट से बाकी देश भर में और खास करके बंगाल में जो बीजेपी का काडर है उसको क्या संदेश जाता है, किस तरह मजबूती से वो लड़ते हैं चुनाव को, वो भी देखने वाली बात होगी। बट एट द मोमेंट विद ईच राउंड ऑफ काउंटिंग व्हाट्स गेटिंग क्लियरर इज दैट द एनडीए इज हेडिंग टुवर्ड्स अ स्वीपिंग मेजॉरिटी, एंड विद दिस the political as well as the social landscape of Bihar is set to change. But we'll have to wait for the final results until a few more hours. Stay with us for our continuous coverage. For now, we'll take a short break. We'll be right back after a short breather. Do stay with us.